Good afternoon, dear student. Today we are going to discuss about socialism in Russia and society and economy or economy and society. तो Russian Revolution or in this topic we will try to discuss about the economy. तो economy that was the period of industrialization. जैसे कि industrialization is started in Russia and due to the unemployment condition was not a good inside Russia. Inside the geometry system there are the different pictures are given, photographs are given, where there is no such proper living condition, no proper sanitation facilities, and wages are too much low and working hours too much long. 12 hours 12 to 15 hours working hours होते थे, बुक में नहीं मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ, कंटिन्यू चलेगा. तो वर्किंग आवर्स लॉन्ग होते थे, तो that's why they form the different association and organization, because in socialism they supported by the different nation, like supported by Britain में एक organization form हुआ था that known as the Labour Party for a Labour. Another one organization formed inside the Germany that was the Social Democratic Party. So in Russia, Russian society divided into two categories. One is the peasants and another one workers. Workers were also divided into different categories. जैसे हर रिलीजन हमारे यहाँ होता है, our country divided into the different religion, और हर रिलीजन में भी फिर डिवीजन होते हैं. Like Hindu religion divided into two part. हिंदू रिलीजन में भी two है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, और उसको शायद some maybe use those are the वैष्णव और इस टाइप से होता है. In Muslim there are two divisions, Sunnis and Shias. In Buddhism there are two divisions, Yin Yang, Maya. Jainism two divisions, Shwetambar, Digambar. Okay. तो ऐसे Russian society worker divided into two categories. One were the skilled worker, those who are getting the high wages. तो skilled थे उन do the metal work, और कुछ unskilled worker थे. And another one society divided into peasants, farmer. Farmers also divided into two categories. अब आप सोचोगे फार्मर में भी कैटेगरी आ रही है. Farmers were divided into two categories. Like some were the landless, जिनके पास लैंड नहीं थी या बहुत कम लैंड थी, तो they may be work on their own land, or sometimes they may be work on other land. जैसे कि जो लेबर का वर्क करते थे, जैसे earlier you were studied there were the story in class 6, आप भूल गए होंगे. Ramalingam was the rich farmer, तो there Tulsi who was the landless lady, she worked on that field. तो farmers were divided into two categories. One landless थे, we can say poor farmer. Another one were the rich landlord, like a noble, and they provide the employment for other. मैं simple English word ड्रामा यूज कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो इतना. तो they provide the employment for other. तो ये सोसाइटी भी इक्वल नहीं हो सकते थे. One society with the rich farmer and another one poor with the those who are landless or small farmer. तो they were not united. यूनाइटेड मतलब यूनिटी होती थी, क्योंकि आप अगर टॉप जो रिच फार्मर है उनको प्रोटेक्ट करोगे, पोर विल बी अगेंस्ट. पोर की डिमांड क्या होगी, वो रिच के अगेंस्ट होगी. क्यों पोर की डिमांड आप सोचोगे तो उनकी डिमांड होगी वेजेस अच्छा मिले. अब वेजेस कौन देगा, गवर्नमेंट तो देगी नहीं. जो ओनर के यहाँ वर्क करेंगे वो देंगे. ओनर्स कौन है, रिच फार्मर. तो एक की डिमांड दूसरों के लिए क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्रोवर्सी वाली बात होगी, यानी एक का डेवलपमेंट दूसरों का नहीं होगा. तो इट मींस फार्मर्स आल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी एजेड वर्कर्स इन रशिया. तो इन रशियन सोसाइटी दे वर नॉट सेटिस्फाइड एंड दे फॉर्म द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी फॉर्म बाय द वर्कर्स एंड सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म बाय द फार्मर्स. तो बोथ पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म इनसाइड रशिया एंड वन इज सपोर्टेड बाय द लेनिन, or that party known by which name, Bolshevik. जो बोल्शेविक बनी, आप आगे जाके स्टडी करोगे, सपोर्टेड बाय द लेनिन, वो थी वर्कर्स पार्टी. Another one who not supported by other, will discuss later on, that is another one political party, वो दूसरी पार्टी. तो यहाँ से ये ग्रुप क्या कहलाया, मेंशेविक.
Bolshevik. In Russian language, meaning of the Bolshevik is majority. Russian language में इसका meaning होता है majority and Menshevik means the minority. तो such group is known by the Bolshevik and Menshevik. ये तो आप चैप्टर कंप्लीट कर लो, उसके बाद लास्ट में पूछ लो कि difference between the Menshevik and Bolshevik. तो Bolshevik अच्छे आंसर भी नहीं देगा. So these are the two types of ideology which was another one was supported by the Lenin, that is known as the Bolshevik. Another one supported by farmers of Britain, that is known as the Menshevik. अब आपने कोई बीच में चैप्टर में आएगा Bolshevik form the government, Menshevik अपोज करेगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेगी. तो let's start the 2.2 economy and society. 2.2 economy and society mostly divided. Farmers, 85% were the farmers inside the Russian society, and cultivators produce for the market as well for their family needs. And industry was found in pocket only. I hope I explained earlier. Industries were found in pocket only. Both rare case में industries मिलती थी inside Russia. That were the two cities which were famous for the industries production. और these were the Pittsburgh and मॉस्को. अब लेटर ऑन पिट्सबर्ग का नेम चेंज करके क्या कर देंगे वो पेट्रो. वाई क्यों चेंज किया नेम उन्होंने? आप रिवीजन चल रहा है ना, फर्स्ट टाइम तो चैप्टर नहीं है. वाई दे चेंज द नेम? बुक में देखने लगे वाई द पिट्सबर्ग से नेम चेंज करके पेट्रोग्राड क्यों कर दिया? होगा भी आने वाले पैराग्राफ में आफ्टर 1 or 2 days, अभी नहीं. Why this happen? Concept are not clear. मैं एक दूसरे को ब्लेम नहीं करता कि suppose anyone was taught that the student of that's why concept are not clear. Maybe there are many students who are sitting from my section, they are unable to give the answer. क्योंकि कभी-कभी आपने हिस्ट्री को बेटा लॉजिकल स्टडी करो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कंसल्ट करो और कंसेप्ट क्लियर करो. Why the पिट्सबर्ग का नेम चेंज करके वो पेट्रोग्राड को कर देते हैं बाद में आएगा, मैं बाद में बता दूंगा. बट अभी क्वेश्चन रेज हुआ है तो मैं आपको बता दूं ये इसलिए हुआ क्योंकि रशियन टोटली अगेंस्ट द जर्मन. जर्मनी और रशिया की नहीं बनती जैसे इंडिया पाकिस्तान. ओके, तो पिट्सबर्ग इज द जर्मन नेम. तो रशियन जब वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है इन जार के साथ, तो जार के सपोर्ट में, तो वो चाहते नहीं कि कोई सिटी हमारी जर्मन नेम से जानी जाए. दैट्स व्हाई दे हैव चेंज द नेम. पिट्सबर्ग से नेम चेंज करके क्या कर देंगे वो. अब एक और वहां पे ड्रामेटिक कैरेक्टर की एंट्री होती है, रासपुतिन आएगा. मोंक का नेम है रासपुतिन इज गिवन. चलो अभी सस्पेंस खत्म नहीं करेंगे, आगे आएगा. तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी 85 for the farmers and most of industries are found in pocket, that was in Pittsburgh and another one in Moscow. And 1890 railways expanded in the Russia, and जब रेलवे expanded होना स्टार्ट हुआ तो you know industrialization has started inside the Russia and foreign investment has started, and due to that foreign investment coal production has double, coal production double हो गया and iron and steel production 4 times, 4 गुना बढ़ गया. Most of the industries were the private properties industries. Private industries most of in Russia. क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसने किया? फॉरेन ने. There was no democracy, तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो नहीं सकती और जार पे भी इंडस्ट्रीज में लगाए जो रूलर था. तो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज वर द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड there is not any regulation by government. There was no such regulation by government, मतलब by जार government. जार भी बोलते हैं इसको, सार भी बोलते हैं, बहुत प्रोनाउंस. तो गवर्नमेंट वर्क टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क. तो गवर्नमेंट ने डिसाइडेड, बुक मत देखो, मेरा प्रेस देख लो, बुक में नहीं मिलेगा, पॉइंट है बट थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा ढूंढने में, कहां देखेंगे. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिमम वेजेस एंड वर्किंग आवर्स का लॉज बनाया हुआ कि मिनिमम वर्किंग आवर्स इनसाइड इंडस्ट्रीज कितनी होनी चाहिए एंड मिनिमम वेजेस शुड बी लाइक दिस. ओके, इट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बट often these rules were broken मतलब किसी ने वो रूल्स फॉलो नहीं किया, हर बार तोड़ा गया. क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन था और प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रमोट किया जाता है इन प्राइवेटाइजेशन. ओके, तो रूम्स एंड डोमेट्री सिस्टम वर नॉट गुड इन रशिया. They were divided by the skilled workers, metal workers,
और इन दिस रेशो 31% वर्क वुमेन, टोटल एम्प्लॉय रेशो जो वर्किंग है, इन दिस 31% वर द वुमेन and forced by the 1914 and women paid the less than the men, जो और जगह होता है, मैंने एग्जांपल भी दिया था, शायद यहाँ तक हो चुका था। and strike in textile industry तो फर्स्ट टाइम हुई थी in 1896 और 97 में inside the textile industry, earlier there were no such strike और strike वहाँ पे लीगल भी नहीं, इलीगल मानी जाती है। मेटल इंडस्ट्री में सेकंड स्ट्राइक हुई during 1902, स्ट्राइक जो हुई। After that, let's start society कैसे थी in Russia। तो society we have discussed about the workers कहाँ होते हैं most of, और where the workers want to live in rural area or maybe urban area, urban। तो we have discussed the society of only urban। अब what about the countryside in rural area? अब rural area का क्या था, तो see the society inside rural area। तो in rural area most of all the peasants, rural area famous for the agriculture production, so that's why most of peasants were living in rural area। peasants most of the land and nobility and orthodox, most of nobles और orthodox follow करते थे। peasants workers were also divided, peasants also divided like a workers। peasants had no respect for the nobles, unlike it was during European French Revolution। French Revolution में क्या हुआ कि French society was divided into three categories, first, second, third state। First state clergy जो mostly चर्च के अंदर वर्क करते थे, second was the noble, third was the peasant, farmer, trader, different category of community, third society in French Revolution। तो in French Revolution क्या हुआ ना, noble has supported to the peasants and peasants also supported together, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई डिवीजन नहीं था। But in Russian peasants have no respect for a noble, noble के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि खुद ही peasants अपने आप में नेचुरल सोशलिस्ट है। नेचुरली सोशलिस्ट कैसे थे? क्योंकि आपको अगर बोला जाए कि आप मिलकर वर्क कीजिए और फिर जो प्रॉफिट होगा इक्वली आप में शेयर हो जाएगा, तो ये फीलिंग्स आपको शेयरिंग वाली फीलिंग्स अंदर से आपके आ रही है और आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इट मींस यू आर सोशलिस्ट, आप सबको सपोर्ट करके चलते हो कि सब एक जैसे रहने चाहिए, तो ये फीलिंग्स क्या हुई, सोशलिस्ट हुई। अब आप सोचो कि सबसे ज्यादा वेजेस मुझे मिलना चाहिए, बाकी को कम मिलना चाहिए, तो कैपिटलिस्ट वाली फीलिंग्स है। तो रशियन सोसाइटी peasants have no respect for nobles like a French Revolution में जैसा दिया गया है। And but Russian peasants wanted the land of the nobles, but उनको क्या चाहिए था, nobles की land, क्योंकि most of the land किसके पास थी, noble, और noble hand over to the land to the peasants, peasants work together और उनके needs के according noble उनको hand over करते थे। So that was not good system, इसलिए वहाँ के peasants they were against the nobles। And Russian peasants were different from the other European peasants also due to their socialist feelings। So they work by pulling their land together and they dividing the output according the needs of individual। बोले सब मिलके काम करते हैं और जो आउटपुट आता है बाहर, आउटपुट मतलब जो प्रोडक्शन, they divide according their needs। सपोज किसी फैमिली में 1 मेंबर है तो according divide, किसी में 5 है तो it may be different, उसको ज्यादा दिया जाएगा। सोशलिस्ट जैसे उनकी फीलिंग से उनके अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर लेते थे विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, तो दे वर द सोशलिस्ट। दैट्स व्हाई दे डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन पीजेंट्स, इसलिए वो दूसरे पीजेंट से डिफरेंट थे रशियन पीजेंट, बिकॉज़ सोशलिस्ट थे। अब सोशलिज्म इन रशिया बिफोर 1914 ऑल पॉलिटिकल पार्टी वर इलीगल इन रशिया। 1914 से पहले सब पॉलिटिकल पार्टी क्या थी, इलीगल, मतलब नो वन कैन फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, नेम है पॉलिटिकल पार्टी का, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फॉर्म इन 1898। रशियन सोशल वर्कर्स डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्म इन 1898। अब आपको कि 1914 तक इलीगल थी, तो हाउ इट इज पॉसिबल 1898 में कैसे पार्टी फॉर्म हो गई? You know there are many work which are illegal, but our society is doing or not? कितने वर्क्स होते हैं जो illegal होते हैं, फिर भी तो सोसाइटी करती है।
चलो टेक द एग्जांपल ऑफ द कॉलोनियल पीरियड। इंडिया के साथ लिंक कीजिए इसके टॉपिक को। इन इंडिया नो वन कैन क्रिटिसाइज द ब्रिटिश ऑफ कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश हैज पास द रोलर एक्ट। उनको लगा कि वी कैन अरेस्ट एनी वन पर्सन विदाउट एनी ट्रायल फॉर ए 2 ईयर। एक रोलर एक्ट निकाला। उसके बाद भी हमारे कुछ रेवोल्यूशनरीज जो थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये अंडरग्राउंड होके इलीगल होते हुए भी इन्होंने क्या ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइटिंग कंटिन्यू रखी है। ये वर्क इलीगल था, लेकिन वो किसके लिए लड़ रहे थे? कंट्री के लिए। कौन सा ऐसा पॉलिटिकल लीडर है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल जब हुआ तो जेल नहीं गया? महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह फांसी तक भी लड़ गए। अभी अगर जेल चले जाए तो कितना बुरा लगता है सब, लेकिन वो किसके लिए गए? कंट्री के लिए। तो वो इलीगल था जेल जाना, फिर भी वो सही थे। क्यों? कंट्री के लिए। बट एनिमी किसके लिए थे? ब्रिटिशर्स के लिए। तो इस टाइप से 1914 तक कोई इलीगल थी, बट उन्होंने एक अंडरग्राउंड पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की थी। इट वाज द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बाय द वर्कर्स। इलीगल था वो किसके लिए? ऑटोक्रेसी के लिए, रूलर के लिए। ऑटोक्रेसी मतलब जार के लिए इलीगल था, बट जो सोशलिस्ट लिख सकते हैं उनको तो सपोर्ट था उसके साथ। तो इसलिए वो पार्टी फॉर्म हुई इन 1890। ये सब बुक में गिवन है। एंड सोशल डेमोक्रेट्स disagree with the socialist revolutionaries over the fact of the Russian Britons are naturally socialist. So those who were the workers, they were not satisfied with the peasants group. ये मानते थे कि जो हम फाइटिंग करेंगे और स्ट्रगल करेंगे अगेंस्ट द ऑटोक्रेसी और रूलर, तो peasants are not united, यानी वो peasants को साथ नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता। Some are divided on the basis of division, some are the poor, some are the rich. United नहीं है ये। अब जैसे कि इंडिया के अंदर अभी जैसे अब कितने ऐसे डिविजन्स देखने को मिलते हैं। अभी आप कहोगे कि किसान मूवमेंट चल रहा है, मुझे तो नहीं लगता पंजाब के किसानों को छोड़ के कोई दूसरा किसान वहां नजर आ रहा है। तो किसानों में भी डिवीजन हो गया ना। अगर किसान मूवमेंट तो व्हाई नॉट इट सपोर्टेड बाय ऑल फार्मर्स? If that is the Kisan movement or farmer movement था, तो why it not supported by all? राजस्थान में भी farmers है, यूपी में, एमपी में, रेस्ट ऑफ स्टेट गुजरात में, सब में। Why they are not supporting them? या तो इनको लगता है कि वो किसान के भरोसे दूसरे टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, या they are not satisfied with them, और why not? कभी-कभी मूवमेंट होता है तो वी नो वेरी वेल कि वी अनएबल टू सपोर्ट, मतलब वेरी टाइम डायरेक्टली वी कांट सपोर्ट इट, हम वहां तक नहीं जा सकते, बट वी कैन स्टार्ट द मूवमेंट इनसाइड आवर टाउन आल्सो ना। कितने मूवमेंट आपने ऐसे देखे होंगे, इवेंट्स हुए दिल्ली के अंदर, सपोर्ट मिला है फ्रॉम चित्तौड़, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट, फ्रॉम जयपुर, फ्रॉम द अदर रेस्ट ऑफ कंट्री। मिलता है कि मिलता? तो आप सपोर्ट तो कैसे भी दे सकते हो, लेकिन उनको सपोर्ट कैसे भी नहीं मिला। और किसान है तो फिर रेड कोर्ट पे जो रात की हरकत की, इफ यू नो अबाउट दैट, फ्लैग से रिलेटेड, तो फार्मर्स का कैसा नहीं करेगा? क्योंकि फार्मर्स तो यहाँ तक है अन्नदाता जिसको बोलते हैं, वो प्रोड्यूस द ग्रेन, और विदाउट ग्रेन वी कांट सर्वाइव। और फार्मर्स कभी नहीं चाहेगा। जो या तो दो इंसानों के अंदर सबसे ज्यादा नेशनलिज्म है इंडिया के अंदर, वन इज फार्मर और अनदर वन इज सोल्जर। फार्मर के अंदर इसलिए क्योंकि वो हमेशा ग्राउंड यानी जमीन से जुड़ा होता है, उसको पता है कि ग्राउंड मुझे जमीन के साथ, वो रेस्पेक्ट करता है लैंड की, और एक सोल्जर करता है। बाकी रेस्ट ऑफ पैसों की रेस्पेक्ट करते हैं बिजनेस में, ठीक है ना। लोग दो तरह से जिंदगी जीते हैं, एक पैसा कमाने के लिए, दूसरा इज्जत कमाने के लिए, और कोई ऐसा होता है जो दोनों को कमाते हुए चलता है। एक ऐसा भी इंसान मिलेगा आपको जो पैसा तो चाहिए उसको, पर इज्जत नहीं चाहिए, डिग्निटी भी चाहिए। एक ऐसा चाहिए डिग्निटी साइड में है, पैसा चाहिए, रेस्पेक्ट तो पैसा और अपना पाएगा। तो आइडियोलॉजी होती है, हर किसी की सोच डिफरेंट होती है, और वी कांट चेंज एनी आइडियोलॉजी। कोई शॉर्टकट से नहीं बनना चाहते, शेयर मार्केट में जंप लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो कितने इस टाइप से होता है। वो स्टोरी हमें बाद में सुनाऊंगा, टाइम नहीं।
And so workers not supported to the farmers or peasants. Lenin felt that peasants were not united. So who was the leader? Lenin. इसका workers का. So he is not ready to support the farmers or join his organization because some are poor and some are rich farmers. Some work as a worker and some employ the workers. Some work as the worker, यानी कुछ as a servant और worker जैसे work करते हैं और some provide the employment to the others who are rich landlords. And Lenin, this party who support the workers, known by the Lenin and known by the Bolshevik group. Okay, यहाँ concept clear हो जाना चाहिए आपको. Those who support the worker, जिसका leader था Lenin और इस पार्टी को बोला गया Bolshevik. Another one party, worker peasants party, और उनका एक ही मैसेज था कि पार्टी is open for all. You all are when we join this party. So it is open for all. So that was the slogan given by the farmers, and this group is known by the Menshevik, or in Russian language, minimum Menshevik and minority. Okay. So this is known as the Bolshevik and Menshevik. Till now your concept are clear. So you may be later, you may be asked. So till now we have discussed Bolshevik and Menshevik, and we have completed economic society, socialism in Russia, and 2.4, that is trouble in Russia. The Russian Social Democratic Worker 2.4. तो बोल्शेविक इज मेजोरिटी फ्रैक्शन, जो मेजोरिटी में थे वो क्या थे? बोल्शेविक थे. और who was the leader? Lenin. What is the full name of Lenin? What? Yes. And he believed that parties should be disciplined. What are the principles given by the Lenin? He believed that parties should be disciplined and should be controlled, and number and quantity of its members. मतलब members should be less quantity, but all are should be disciplined. Many times what happens? If you are large quantity or you all are not disciplined, so there is no such importance. I was seen inside the movie, और अच्छा सीन लगा मुझे अभी तक मेरे माइंड में कि you want to give the training for a players, Indian players में, I was हॉकी के होंगे, and you want to train all, तो पहले क्या होता है, मोटिवेट किया जाता है कितने तरीकों से फिजिकल ट्रेनिंग के पर. तो वन साइड ग्राउंड पे ब्रिक्स ईंटें रखती है और वो बोलता है कि इनको इधर से उधर लेके जाना, तो सब एक एक उठा के लेके जाते उधर, वो कहता वापस उधर से इधर लेके, जो छोटा ग्राउंड वो वापस इधर जाता, इसको वहां से वापस सब अपने उठाते वहां रखते, सब थक जाते हैं, उनका कोच कंटिन्यू होता है. फिर वो सोचते कि ऐसे क्या हमसे जो पॉइंट है जो मिसिंग हो रहा है, जो कोच हमसे चाहता है, दैट इज शेयरिंग. मतलब आपस में सोशलिस्ट और शेयरिंग करना. फिर सब क्या करते हो, ऐसे लाइन में एक इसको दी, मैंने इसको दी, उसने उसको शेयर की, उसने उसको शेयर की, यानी काम जहाँ 2 घंटे में होता है विदिन 10 मिनट. तो जहाँ तक आपको पासिंग, हॉकी में, फुटबॉल में शेयरिंग, मतलब एक फीलिंग्स होता है ना, पासिंग शेयरिंग नहीं होगी ना, आप सोच लो मैं अकेला ही सब कुछ करूंगा, तो नो वन टेक केयर. शेयरिंग होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन होता है, सिंगल प्लेयर कुछ नहीं कर सकता. तो जहाँ तक आपकी शेयरिंग नहीं आएगी कुछ भी नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. तो ऐसे अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में, जैसे 1857 रिवोल्ट वाज स्टार्ट इन क्लास 8 एंड दे वर इन ह्यूज क्वांटिटी, पर दे वर नॉट ट्रेंड. कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई उनका गोल नहीं था, कभी दिल्ली की तरफ टर्न लिए तो कभी किसकी तरफ टर्न लिया उन्होंने सोल्जर्स ने. दे वर नो अर्लियर प्लानिंग होती थी क्यों मूवमेंट स्टार्ट किया है. दैट मूवमेंट वाज फेल, पूरी तरह फेल हुआ.
ठीक है, उसने हमें मोटिवेट तो किया कि हम मूवमेंट भी कर सकते हैं। समटाइम्स दिस हैपेंस, कुछ चीजें फेल होना भी अच्छी चीज होती है। अगर बच्चा गिरेगा नहीं तो चलना कहां से सीखेगा। अगर बच्चा सोच ले कि चलने से गिर जाता हूं तो वो चलने नहीं सीख सकता। तो गिरना भी अच्छी चीज होती है। तो ये मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है।